Hi everybody, my name is Mohammad Tufail. I am assistant professor at University of Sindh campus Badin, and presently I am talking you from the platform of the Paragon Academy Badin. I welcome you all in the 9th session of free online English language teaching course. This course is a free and every student can participate in this program. Simple way is that you have to join this page of Paragon Academy, where from I come live on every alternative day from 4 to 5:30 o'clock, and the material whatever we discuss here in this class, that is available in the Google Classroom, and the code of the Google Classroom is available on the wall of this Facebook page. I hope this I call it a little effort on my part may contribute towards your academic excellence and the betterment. We are really in a crisis across the globe, but people who are developed, they have ways and means to face and change the world and continue their education. But on the contrary, when we look at our phenomenon, that's really challenging, and we are stuck in that sense, not so only given to our health risk, but this is the time when we are stuck, economically stuck, and medically stuck, and also academically. So in the given situation, we have to find and we have to invent the means to continue our academic sessions across a country or across nation. And I also believe that all those skillful professors and faculty, they may come forward and to rescue our this academic system that is really collapsing because of this unprecedented circumstances. So, well, we have to face these challenges, and wherever you are, you have to continue it, and ultimately we have to move forward with a better world. And I am quite optimistic that this time would pass on. So well, now in this 9th session, I would recap my previous sessions, and I would connect this session so that we could move forward. In our previous sessions, we talked about that what language is, एक ज़बान क्या होती है. So we discussed that language is a means and a source to communicate ideas, feelings, questions, queries. You want to share a piece of information. You have certain objections, what you want to raise. Communication, that is the main objective of any language on the face of earth. ये एक राब्ते का ज़रिया है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि लैंग्वेज में स्किल्स हमें कौन से सीखने होते हैं. सो वी प्राइमरली फोकस ऑन दीज 4 स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. और उसमें 2 आर इनपुट एंड 2 आर आउटपुट, एंड आई फोकस दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मे इट बी L1 एंड L2. व्हेन वी टॉक अबाउट L1, जो हमारी अपनी लैंग्वेज 1 है, उसमें यह होता है कि हम 2 स्किल्स घर पे सीखते हैं, 2 जो है ना वो स्कूल में सीखते हैं. लिसनिंग, स्पीकिंग, सिंधी उर्दू की आपने घर पे सीखी. रीडिंग, राइटिंग आप जो है ना वो स्कूल में जाकर सीखी. Whereas when you go to English, that is L2, and in that sense we need to focus on these all 4 skills. And here English is we are teaching it or we are dealing it as L2. Therefore, we would use it. We would equally focus on these 4 skills, that's listening, speaking, and reading and writing, so that ultimately
you could be able to listen and speak as well, along with the reading and writing. So we have to focus on these 4 skills of English language. Then we said that what should be the way, means what are the essentials of language learning. Okay, language सीखने के लिए हमें बुनियादी तौर पे क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. So in that I just shared with you that you need to focus on 3 things: semantics and phonetics and syntax. Okay, semantics आपकी vocab जो है वो हमने बढ़ानी है. उसके बढ़ाने के लिए हम क्या करें, आपने देखा है हम डिफरेंट वीडियोस सुनते हैं, हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं रीडिंग के थ्रू, लिसनिंग के थ्रू. उसमें जितनी भी वोकैब इस्तेमाल हो रही है हम उसको यूज़ करते हैं ना. जो मैं आपको कहता हूँ कि अभी जो क्लिप आपने सुना है आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलें, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें ताकि वो आपके आउटपुट में आए. देखिए जब तक वो चीज़ें आउटपुट में नहीं आएंगी यू विल फॉरगेट इट. सो semantics is very important thing. पहला जो उसमें component आता है that is the semantics. Okay, so after semantics we come to phonetics. That's very necessary. The way we pronounce words is important. You know, आपकी अपनी जो L1 है वो आपके L2 पे असरअंदाज होगी नेचुरली. जब कोई सिंधी भाई उर्दू में बात करते हैं शुरू में तो अवाइली तौर पे उनकी सिंधी का जो उर्दू बोलने का एक्सेंट होता है वो सिंधी की तरह होता है ना, वो सिंधी के अंदाज में उर्दू में बात करते हैं. इसी तरह हमारे पंजाबी भाई भी इसी तरह करते हैं. पठान भाई जो हैं वो भी जब उर्दू में बात करते हैं तो आम तौर पे, लेकिन उनका जो एक्सेंट होता है वो पश्तो वाला होता है और वो जो है ना वो जो वोकैब है वो उर्दू की यूज़ कर रहे होते हैं तो वो उर्दू को पश्तो के एक्सेंट के साथ लहजे के साथ बात करते हैं. ये चीज़ हमें कवर करनी होती है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोनेटिक्स वी कुड इम्प्रूव योर साउंड सिस्टम एंड यू कैन बेटर प्रोनाउंस दीज वर्ड्स प्रॉपर्ली. एंड देन यू कम टू syntax. Okay, and in the syntax we have to cover these all things grammatically, the grammatical areas. But in that again we would not go with this type of a pattern with the traditional grammars, remembering definitions etc. Well, हम क्या कर रहे हैं कि we are trying to connect it with the functions of grammar. How grammar functions in the language is a far greater and important than simply just studying grammar. Grammar को आप महज definitions के तौर पे पढ़ें और उनकी definitions याद करें और अकेले आप एक्टिव से पैसिव और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तब्दील करते रहें. लेकिन जब लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हूँ तो आपको पता ना चल रहा हो कि यहाँ पे मैं एक्टिव कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, वाई पैसिव कहाँ यूज़ कर रहा हूँ. या लैंग्वेज में जब आप यूज़ करें तो आपको पता ना चले कि अब मुझे नरेशन कहाँ यूज़ करनी है. तो फिर वो जो अकेला आइसोलेटेड ग्रामर पढ़ना है ना उसका फिर हमें फ़ायदा नहीं होता. Therefore it is necessary to connect. It is a time. Okay, ये वो टाइम है कि जब हम ग्रामर को अपनी लैंग्वेज टीचिंग के साथ कनेक्ट करें और लैंग्वेज में उसको डिस्कस करें, लैंग्वेज से बाहर डिस्कस न करें. जो हम पिछले जो है ना वो 70 सालों से करते आ रहे हैं तो उसमें बहुत हमारा एक नुकसान ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स को ग्रामर वो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके दे देंगे, वो आपको नरेशन चेंज करके दे देंगे, एक्टिवाइज पैसिवाइज चेंज कर देंगे. लेकिन जब ये बात आएगी कि हाउ टू यूज दीज ऑल थिंग्स इन लैंग्वेज वंस दे आर इन द लैंग्वेज इन द सिस्टम, then this thing is quite disappointing. And the students when they write they don't care whether they are going to apply narration or not. They have a problem with their prepositional structures, they have a problem with their appropriate adjectives, and they have proper problem with their punctuation. So then this grammar becomes useless. Okay, so this syntax, all studies of syntax become useless because we are not going to apply them or imply them rather in our language usage. Only remember as a isolated activity what we have been doing in this our school system for the last 80 or 70 years. So it is time to raise to change our attention beyond this activities. And so this is where we covered this these areas, that semantics, then phonetics, pronunciation, then syntax. They would go all in this session. Okay, so in last 8 session I have tried to unfold the basics of language learning
and how could you improve your language practically, and how can you use this language effectively in your life, in your academic field, or in your professional field, or etc. wherever. So now in today's session, that's the 9th session, and today we would try to connect this session with the previous one, and we would begin with the syntax, and after syntax we will connect other aspects, that's listening and reading, and then also somehow we will go with for writing, and then these all skills will go together. So let us switch towards our syntax period, and in this session we will talk about that, what is a syntax and what are the things and how they are being connected. Well, now this is what we call word classes. In word classes, in our previous sessions, we talked about that we have classified these words, okay, because in the previous slide, we talked about the structure of language, okay. And when we talked about structure of language, then we said that letters, they make syllables, and syllables make word, and word makes phrases, then clauses, then sentence, then paragraph, then essay. Now, we talked that these all syllables, they make a word, and then we classify these words into different classes, okay. Why do we call them class? We call them as a class because they are going to serve a particular purpose in this language system. Language itself is a system, and these all words, they are going to play a role, okay. They are going to play a role as a system, okay, and that system is very much important. So in this sense, okay, we have this what we call noun, and noun basically is used as a naming word. First, okay, in these classes there comes a noun. Noun का काम ये कि ये चीज़ों पे नाम रखे, okay. तो नाउन चीज़ों पे नाम रखता है ताकि पहचान हो. दिस इज़ अ नेमिंग वर्ड, ओके. बट नाउन कॉजेज रिपीटेशन, ओके. नाउन से जो रिपीटेशन पैदा होती है, दैट ब्रिंग्स मोनोटनी इन लैंग्वेज. वहाँ से लैंग्वेज के अंदर एक मोनोटनी आती है. उस मोनोटनी को ख़त्म करने के लिए वी गो टू दिस प्रोनाउन, ओके. प्रो का मतलब है सपोर्टिव, हिमायत करने वाला. दैट्स अ प्रो, दैट फेवर्स. This favors a noun, okay, pro. And what's the problem with the noun, okay? The problem with the noun is that it repeats this noun every time. अब उस noun को बार बार repetition जो होती है वो problem करती है. उसको avoid करने के लिए we go to this pronoun. This is pro. Pro means supportive, उसके favor करने वाला. So this is a pro of noun that comes to support or help noun. Then what's the problem with the noun? The problem with noun is that it is going to bring repetition. It brings monotony in a language, okay. It kills the variety of a language. Language की जो variety है उसको ये जो है ना वो affect करता है. So it brings pronoun. Pro means supportive, and this pro that brings variety. तो noun ने जो बार बार repetition language में पैदा की थी, pronoun उसी को ख़त्म करता है. Then we move forward to adjective. So pronoun, this is I, we, you. अब देखिए, अगर एक नाउन को बार बार रिपीट किया जाए लैंग्वेज में, तो वो लैंग्वेज के अंदर वो फ्लो नहीं रहता, वो खूबसूरती नहीं रहती, उसके अंदर यकसानियत या मोनोटनी पैदा हो जाती है. मोनोटनी से क्या होता है, लैंग्वेज की जो वैरायटी होती है, वैरायटी से मेरा मतलब ये कि जो उसके अंदर मुख्तलिफपन है, जो उसके अंदर मुख्तलिफ जो शेड्स हैं लैंग्वेज की खूबसूरती के, वो ख़त्म हो जाते हैं. फिर वो यकसानियत आ जाती है कि मैं जाहिद के पास गया, जाहिद घर में मौजूद था, जाहिद ने दरवाज़ा खोला, जाहिद 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 एवरी टाइम. दैट्स नॉट ब्यूटी ऑफ अ लैंग्वेज. इसको अगर आप यूँ करें कि मैं जाहिद के पास गया, वो घर में मौजूद था, वो कौन जाहिद, उसने दरवाज़ा खोला, उसने कौन जाहिद, उन्होंने चाय पिलाई, उन्होंने कौन जाहिद. अब देखिए, ये वो उस उन्होंने, दैट इज़ द वेराइटी व्हिच इज़ गोइंग टू प्ले फॉर दिस प्रोनाउन, ओके. तो ये आपके लैंग्वेज के अंदर खूबसूरती पैदा करें. नाउ कम टू द फील्ड ऑफ एडजेक्टिव, ओके. वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ अ लैंग्वेज, ओके. एडजेक्टिव का काम ये होता है कि लैंग्वेज में जिस भी नाउन या प्रोनाउन को आप एडजेक्टिव दे रहे हो, वो उसी को क्वालिफाई कर रहा है. देखिए, नाउन प्रोनाउन मैंने कहा है कि वो ऐसा समझो कि दे आर डम, वो गूंगे हैं.
दे नीड अ लॉयर, दे नीड एन एडवोकेट, उन्हें कोई वकील चाहिए, कोई उनका वकालत करे। और एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन की वकालत करना, उसको क्लियर करना, उसकी मदद करना। सो नाउन प्रोनाउन के बारे में जो भी आपको मालूमात देता है दैट्स एडजेक्टिव, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया दैट वी शुड गिव सूटेबल एडजेक्टिव टू ए नाउन। ओके, दिस इज रियल द लैंग्वेज बिगिंस। ओके, लैंग्वेज की खूबसूरती है कि जो एडजेक्टिव हम किसी नाउन को दे रहे हों वो उसको रियल सेंस में क्वालिफाई करता हो, उसी को एक्सप्लेन करता हो, उसी को जो है ना में कुछ चीज़ ऐड करता हो। मैंने प्रीवियस सेशन में कहा था कि हम अक्सर तौर पे ब्यूटीफुल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हम हर नाउन को देते चले जा रहे हैं। तो एडजेक्टिव की जो रिश्तेदारी है नाउन के साथ ये बेजोड़ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हमारे ज़िंदगी के ताल्लुकात बेजोड़ होते हैं, इसी तरीके से हमने नाउन और एडजेक्टिव के रिश्ते को भी बेजोड़ किया हुआ। ये बेजोड़ नहीं होना चाहिए, इसके अंदर वो तरतीब होनी चाहिए कि ये आपस में मैच करते हो। इसके लिए इट्स वेरी नेसेसरी दैट नाउन शुड बी गिवन सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। अब अगर टीचर है, आप टीचर्स को अगर कह दें कि ही इज़ ए ब्यूटीफुल टीचर, तो देखिए टीचिंग में ब्यूटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। यस, अगर आप कह रहे हैं कि ही इज़ ए स्किलफुल टीचर, ही इज़ ए एक्सपीरियंस टीचर, ही इज़ ए रेगुलर टीचर, ही इज़ ए पंक्चुअल टीचर, ही इज़ ए हार्ड वर्किंग टीचर, ये तमाम एडजेक्टिव उस टीचर्स के बारे में ऐड कर रहे हैं। लेकिन ब्यूटीफुल से क्या मुराद है? टीचर्स नॉट लाइक ए मॉडल व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो व्हाट्स दैट सेंस? ओके, तो इसी सेंस में फूड के लिए हम कह देते कि यार इट वाज वेरी ब्यूटीफुल डिनर। यार ब्यूटीफुल नहीं, डिनर था, आप उसको ऐसा एडजेक्टिव रखें जो डिनर को जो है ना वो क्वालिफाई करता हो। यू मे से दैट इट वाज ए डिलीशियस डिनर, डिलीशियस, इट वाज ए टेस्टी, इट वाज ए स्पाइसी, इट वाज ए यम्मी। तो यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस, ये वो चीज़ें जो फूड को क्वालिफाई, फूड नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो एडजेक्टिव शुड बी अकॉर्डिंग दैट कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, आर यू से दैट इंफॉर्मेटिव क्लास, आर नॉलेजेबल क्लास, या आप ये कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी पंक्चुअल टीचर, आप कहते हैं कि ही इज़ ए ओबीडियंट स्टूडेंट। तो इस तरीके से सॉरी, नाउन को जो एडजेक्टिव दिया जाए दैट शुड बी appropriate and it must qualify to that noun. Okay, अब हम verb पे आते हैं। तो verb आपको क्या सिखाते हैं? The main job of verb is that to teach you. Verb means work. Okay, इसका काम है कि आपको सिखाना, वर्क, काम क्या हो रहा है। वर्ब से जाहिर है काम जो है ना, वर्क क्या हो रहा है। तो नाउन ने नाम रखा है, प्रोनाउन उसके मुतबादिल आया है ताकि नाउन को बार बार रिपीट न किया जाए। एडजेक्टिव बताता है कि नाउन प्रोनाउन है कैसा, और वर्ब बताता है कि वो काम क्या करता है। देन वी कम टू वर्ब जो है ना, देन वी कम टू एडवर्ब। ओके, अब देखिए वर्ब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि शी प्लेज, प्लेज अ वर्ब, आई एम गोइंग, गो इज अ वर्ब, दे वेट, वेट इज अ वर्ब, इंतजार कर रहे हैं। शी इज कुकिंग, कुक इज अ वर्ब। ओके, डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑफ कोविड-19, ट्रीट, ट्रीट, ट्रीट इज अ वर्ब, इलाज करना, TREAT, ट्रीट। सो these verb they show us that what the work is going on. Okay, अब वर्ब से आगे हम जाते तो हम आते हैं एडवर्ब में। पिछली क्लास में मैंने आपको सिंपल बताया था कि एडवर्ब का काम है, देखिए इसके नाम से जाहिर है ये वर्ब में ऐड करता है ना, वर्ब के बारे में मज़ीद क्लियर करता है। तो बेसिक आपका कंसेप्ट डेवलप करने के लिए मैंने इसको सिर्फ वर्ब तक महदूद रखा हुआ है, लेकिन आगे चल के मैं इसको फैलाऊँगा। और याद रखिएगा कि एडवर्ब जो है ना वो डोमेन है लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों की सपोर्ट करता है। नाउन पे नाउन की मदद करना एडजेक्टिव की जिम्मेदारी है, और एडजेक्टिव किसी दूसरे को इजाज़त नहीं देगा कि नाउन पे नाउन की मदद करे। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करने के लिए फिर एडवर्ब चला जाता है। एडवर्ब वो चीज़ है जो वर्ब को भी क्लियरिफाई करता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं शी प्लेज, अब प्ले वर्ब है ना, खेलती है। कैसे खेलती है? एडवर्ब बताएगा, शी प्लेज फास्ट। अब देखिए शी प्लेज फास्ट, फास्ट एडवर्ब है जो प्ले के बारे में बता रहा है कैसे खेलती है। फिर यही एडवर्ब जो है ना एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि शी इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है? एडजेक्टिव है। किसके बारे में बता रहे हैं? शी के बारे में, क्योंकि प्रोनाउन है। प्रोनाउन या नाउन की मदद करना ये एडजेक्टिव का जिम्मा है। अब ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितनी ब्यूटीफुल है, अब इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए अगेन वी नीड एडवर्ब। ओके, अगर हम कहें कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल में जो वेरी है ना वो एडवर्ब बन जाएगा, जो किसके बारे में बता रहा है? एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। तो
एडवर्ब जो है लैंग्वेज में वो नाउन के अपना एडजेक्टिव की भी मदद करता है, वर्ब की भी मदद करता है, और एडवर्ब दोबारा एडवर्ब की अपनी मदद करता है, फिर एडवर्ब जो है ना वो प्रेपोजिशन की मदद करता है, फिर एडवर्ब कंजक्शन की मदद करता है। इतने एरियाज़ के अंदर ये एडवर्ब फैल सकता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट देने के लिए मैंने आपको सिर्फ एडजेक्टिव इसको वर्ब तक मैंने इस स्लाइड में रखा हुआ है, और आगे चल के मैं फिर जब एडवर्ब में डिटेल में जाऊंगा देन आई वुड जस्ट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट एरिया। एंड मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, मैं रश नहीं कर रहा हूँ, जो है ना मैं इन कंसेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये एक मरतबा क्लियर हो जाए। फिर जो है हम इन चीज़ों को जो है ना वो दोबारा इन चीज़ों में तो आपको उलझने की ज़रूरत न पड़े। देखिए, जब तक आपको इनके लैंग्वेज के जो क्लासेस हैं, जब इनके आपको फंक्शन का पता नहीं होगा कि ये लैंग्वेज में फंक्शन क्या करते हैं, तब तक आप लैंग्वेज को इस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वेदर यू आर यूजिंग टेंस, विच इस एडजेक्टिव, इस नाउन, इस वर्ब, वो क्या कर रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो नाउन ने चीज़ों पे नाम रखा, प्रोनाउन उसके मुतबादिल लाया ताकि हम नाउन को बार बार रिपीट ना करें। एडजेक्टिव ने नाउन प्रोनाउन के बारे में ऐड किया, फिर वर्ब ने बताया कि वो काम क्या कर रहे हैं, एडवर्ब ने बताया कि वो काम कैसे हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि शी इज़ प्लेइंग, प्ले वर्ब है, कैसे खेल तो रही है लेकिन कैसे खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग स्लो एडवर्ब है। शी इज़ प्लेइंग फास्ट एडवर्ब है। ही कम्स डेली, आता तो है, कैसे आता है, डेली। आई टीच अल्टरनेटिवली, मैं पढ़ाता हूँ लेकिन कैसे पढ़ाता हूँ, अल्टरनेटिवली एडवर्ब है, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, अल्टरनेटिवली। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस एडवर्ब। देन कम टू प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम दो एरियाज को डिस्कस करते हैं। दे आर सम प्रेपोजिशंस, दे आर लॉजिकल प्रेपोजिशंस, जिसमें जो एक मखसूस लॉजिक के तहत यूज़ होते हैं कि एट को कहाँ लगाना है, आन को कहाँ लगाना है, इन को कहाँ लगाना है, इंटू को कहाँ लगाना है, आंटू को कहाँ लगाना है, ओवर कब लगता है, अपान कब लगता है, एकरास कब लगता है, थ्रू कब लगता है, इन फ्रंट ऑफ कब लगता है, बिसाइड कब लगता है, बिहाइंड कब लगता है, अबाउट कब लगता है, अगेंस्ट कब लगता है, अलॉन्ग कब लगता है, ऑपोजिट टू कब लगता है, फेसिंग टू कब लगता है, अराउंड। तो ये इनकी सबकी एक सिचुएशन है, एक सर्टेन लॉजिक है जिसके में हम इन प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेपोजिशंस में को हम दो एरियाज़ में डिस्कस करेंगे। एक तो ये प्रेपोजिशन जिसकी अभी मैंने आपको बताया, दूसरे प्रेपोजिशंस जो हैं वो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं जो किसी मखसूस नाउन को या किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को फॉलो करते हैं। तो वो फिक्स्ड या डेफिनेट जो प्रेपोजिशंस हैं वो हमें याद करने होते हैं और उनको समझना होता है। मिसाल के तौर पे अब देखें, जिस तरह प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि ट्राई इज़ अ की टू सक्सेस। ओके, अब की के बाद प्रेपोजिशन जो हम लगाते हैं ठ लगाते हैं, ये अलहदा है कि हम अक्सर लगाते हैं कि ट्राई इज़ अ की ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आव नहीं लगाना चाहिए, हमें ठ लगाना चाहिए, ट्राई इज़ अ की टू सक्सेस। या नॉक, आप दरवाजे पे करते हैं, नॉक एट होता है, ये वर्ब है, इसके बाद एट प्रेपोजिशन आता है। लुक हु इज नॉकिंग एट द डोर, नॉक एट। लुक के साथ हम एट लगाते हैं, लुक एट। लिसन के साथ हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, लिसन टू मी। या रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। अराइव के साथ हम एट लगाते हैं या इन लगाते हैं। इसी तरीके से जो है वो सिक के साथ हम आव लगाते हैं, आई एम सिक ऑफ दिस। और इल जो होता है बीमार, ILL, उसके साथ प्रेपोजिशन विद लगाए जाते हैं, इल विद, ही इज इल विद मलेरिया, आई एम सिक ऑफ यू। इंसिस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाया जाता है, परसिस्ट के साथ इन लगाया जाता है, टिपिकल। तो ये दीज आर डिफरेंट prepositions, what we call them fixed and definite prepositions. तो अब क्या करना है, थैंक यू जीशन, थैंक यू वेरी मच। अब क्या करना है कि हमने इन prepositions की सेपरेट क्लास आगे चलाएंगे, जिस तरह अभी हम इनको डिस्कस करें।
फिर सेपरेट क्लास होगी, एक पूरी क्लास जो है ना हम लॉजिकल प्रेपोजिशन पे चलाएंगे, एक पूरी क्लास हम जो है ना फिक्स डेफिनेट प्रेपोजिशंस पे चलाएंगे, और इस तरीके से हम इन एरियाज को कवर करेंगे। तो नाउन ने नाम रखा, प्रोनाउन उसके मुतबादिल लाया, एडजेक्टिव आपको बता रहा है कि नाउन प्रोनाउन है कैसा, वर्ब बता रहा है काम क्या हो रहा है, एडवर्ब उस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि वो कैसे हो रहा है, प्रेपोजिशन उसकी जगह प्लेस उसको डिटरमिन कर रहा है, और उसमें लॉजिकल और फिक्स डेफिनेट प्रेपोजिशंस दोनों को हम ले रहे हैं। Then we come to the area of conjunction. Conjunction. This is con means to, junction. Junction आपने देखा रेल की पटरियाँ होती हैं जहाँ पे आकर मिलती हैं, we call them junction. Okay. Conjunctions. Basically con means to, दो. ये दो को आपस में मिलाते हैं. तो conjunction, the job, the role of a conjunction is that to connect your talk, you connect your speech, to connect your language. ये language में सीमेंट का काम करता है, ये उसके दरमियान रब्त पैदा करता है, मुख्तलिफ सेंटेंस के पार्ट में, मुख्तलिफ सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस से आगे इवन पैराग्राफ्स में ये एक रब्त पैदा करता है, कनेक्टिविटी पैदा करता है, एक लिंक पैदा करता है। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम यूज़ करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं। कभी हम बट लगा कर कनेक्ट करते हैं, कभी देयरफॉर लगा कर कनेक्ट करते हैं, कभी सो लगा कर कनेक्ट करते हैं, कभी नेवरदलेस लगा कर कनेक्ट करते हैं, कभी नॉनदलेस लगा कर कनेक्ट करते हैं, कभी इंस्पाइट ऑफ का सहारा लेते हैं, कभी डिस्पाइट का यूज़ करते हैं, कभी ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, या ऑन द वन साइड, ऑन द अदर साइड, या कभी ऑन द कॉन्ट्ररी, तो कभी नॉट विद स्टैंडिंग, कभी बिसाइड्स, कभी इन एडिशन टू। तो ये डिफरेंट वे से हम इन कंजक्शंस को लेकर, कभी एल्दो को, कभी येट को, और ये डिफरेंट कंजक्शंस हैं और इनको हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज के अंदर रब्त पैदा करने के लिए, लैंग्वेज को कनेक्ट करने के लिए, उसके अंदर जो ना लिंक पैदा करने के लिए। सो द जॉब ऑफ ए कंजक्शन बेसिकली इज़ टू कनेक्ट। एंड अगेन हम फिर एक दिन इस कंजक्शन को खोलेंगे और कम्प्लीटली ओपनली इसी कंजक्शन पर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से we would move forward to interjection. Interjections is the expressions of your sudden feelings of excitement, hatred, love, pain, whatever. So this is just exclamatory words, कुछ words हैं जो आपके sudden feelings को express करते हैं। May it be alas, ये दुख की का साइन है, और हरा खुशी की अलामत है, या हुरे ये पी दैट्स एक्साइटमेंट, आउच जब कोई पैन होता है, फू जब नफरत, फू या उग, एंड देन देयर इज दैट यू से दैट फू और फ्यू, आई एम टायर्ड, फ्यू दैट इज अ साइन ऑफ जब आप थके हुए होते हैं तो हम ये थकावट, व्हाट वी कॉल एग्जॉस्शन, ओके, साइन ऑफ एग्जॉस्शन। सो दिस इंटरजेक्शंस के अंदर हम इन सडन फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, और उनको मैंने पिछले मरतबा भी समझाया था कि इनको लिखने के दो तरीक़ेकार होते हैं। या तो आप इन एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स जिस तरीके अलेस या हरा या yippee या फ्यू या आउच या वाओ, इनके बाद फ़ौरन एक्सक्लेमेशन साइन दें जिस तरीके से हमने यहाँ पे दी है अलेस के बाद, और फिर देखें कि एच को कैपिटल किया गया है। मैंने कहा था कि ये 5 या 6 जगह हैं जहाँ पे हमें हमेशा कैपिटल लेटर लिखना होता है। फुल स्टॉप के बाद जब भी हम लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद जब भी लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन के बाद जब भी लिखेंगे कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा जब शुरू होती है तो हम लिखेंगे तो हमें कैपिटल लेटर से लिखना होगा। जब भी प्रॉपर नाउन आ जाए, कहीं भी सेंटेंस में आए, बदीन, पाकिस्तान, ये प्रॉपर नाउन है, ये सेंटेंस इनको हम कैपिटल करेंगे। और प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। मिसाल के तौर पे थैली एक प्रॉपर नाउन है, इसका एडजेक्टिव बनेगा इटालियन, रशिया का एडजेक्टिव बनेगा रशियन, चाइना का एडजेक्टिव बनेगा चाइनीज़, टर्की का एडजेक्टिव बनेगा टर्किश। अब ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये सब जो है ना वो कैपिटल में लिखे जाते हैं। तो फुल स्टॉप के बाद, क्वेश्चन मार्क के बाद, एक्सक्लेमेशन साइन के बाद, इन्वर्टेड कामा शुरू होने के बाद, और प्रॉपर नाउन को और प्रॉपर एडजेक्टिव को, इनको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। दैट इज़ अ रूल। सो इन दैट सेंस आपके पास दो ऑप्शन हैं, या आप इनको आप एक्सक्लेमेशन साइन के एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन साइन दें,
और आगे कैपिटल करें, या अगर आपने अलेस के बाद इस तरह अगर खामा दी है तो आपको सेंटेंस के आखिर में आकर एक्सक्लेमेशन साइन देनी होती है। तो देयर आर 2 पैटर्न्स एंड बोथ आर राइट, इट्स अप टू यू। इनिशियली हम स्टूडेंट्स को ये पैटर्न सीखते हैं, बट एडवांस लेवल्स में वी प्रेफर दिस एज वेल। ओके, सो इन दिस वे नाउन ने नाम रखा, प्रोनाउन मुतबादिल लाया, एडजेक्टिव ने बताया नाउन प्रोनाउन का है कैसा, वर्ब ने बताया काम क्या कर रहा है, एडवर्ब ने बताया कि वो काम कैसे हो रहा है, प्रेपोजिशन ने उसकी जगह प्लेस को तयन किया, कंजक्शन ने उसके दरमियान लिंक और रब्त पैदा किया, इंटरजेक्शन आपकी सडन फीलिंग्स का तर्जुमान बना। आर्टिकल जो है ये चंद लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ करती हैं, सब लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करती, अंग्रेज़ी यूज़ करती है, अरेबिक यूज़ करती है। इस तरीके से ये लगाकर हम जो है उसको जो है यूज़ करते हैं। अब आर्टिकल यूज़ कहाँ होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया कि पहली बात ये कि वो नाउन हो, ठीक है। अब नाउन पे जब हम आते हैं, मैं नाउन को आगे चल के क्लास में खोलूँगा, लेकिन जस्ट यहाँ पे आर्टिकल के हवाले से इतना बता दूँ, नाउन या प्रॉपर होता है या कॉमन होता है। प्रॉपर वो नाउन है, उस जैसी दूसरी चीज़ दुनिया में है ही नहीं, वी कॉल इट्स प्रॉपर नाउन। सपोज बदीन इज़ ए प्रॉपर नाउन, तुफैल इज़ ए प्रॉपर नाउन। अब दूसरा तुफैल होगा इस नाम का, लेकिन वो तुफैल ये नहीं होगा जो मैं हूँ, वी आर डिफरेंट, ओके, दिस इज़ ए यूनिक। अच्छा, जो कॉमन होती हैं वो चीज़ें होती हैं जिस जैसी दूसरी चीज़ें भी मौजूद हों। पानी कॉमन है, दूध कॉमन है, फैन, बोर्ड, चेयर, ये कॉमन नाउन है। तो नाउन या प्रॉपर होते हैं या कॉमन होते हैं। जो प्रॉपर होते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा करें, जो कॉमन नाउन होते हैं उनको कभी भी कैपिटल ना करें। जो कॉमन नाउन होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ओके, आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिनती कर सकते हैं। अब आप देखो, जिसको आप नाउन कह रहे हो उसकी शक्ल कैसी है, 1 2 3 4 5 की मदद से उसको हम गिन सकते हैं। अब दरवाजे हैं, गिने जा सकते हैं तो काउंटेबल है। विंडो है, गिनी जा सकती है तो काउंटेबल है। टेबल को गिन सकते हैं, 1 टेबल 2 टेबल, 1 चेयर 2 चेयर, 1 सेल फोन 2 सेल फोन्स, 1 लैपटॉप 2 लैपटॉप्स। तो जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है। लेकिन वो चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं करने से मुराद मेरी वो नहीं, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्टार्स अनकाउंटेबल हैं। नहीं, तारे जो हैं स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं हैं, वो काउंटेबल हैं, हम उनको गिन सकते हैं। हाँ, उनकी तादाद ज़्यादा है कि हम उनको गिनकर पूरे नहीं पढ़ते, देयरफॉर वी कॉल देम काउंटलेस। Stars are not uncountable, stars are countless. Countless in a sense that we can't count them up, okay? हम उनको गिनकर पूरे नहीं पढ़ते, but this doesn't mean that they are uncountable. They are countable. जो चीज़ की लातादाद हो, बेशुमार हो, तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं countless या infinite. Infinite, उसे हम uncountable नहीं कहते। स्टार्स आर काउंटेबल, ठीक। हाँ, अब दूध है, अब दूध जो है ना वो अनकाउंटेबल है। अब दूध को कैसे हम गिनती करें, कैसे कहेंगे कि 1 दूध 2 दूध 3 दूध? क्या हम कह सकते हैं 1 पानी 2 पानी 3 पानी? या आप कहें कि मुझे 1 चावल दो, 2 चीनी दो, 1 पेट्रोल दो, 7 दूध दो, 5 तेल दो? देखिए ये चीज़ें नहीं आती, इस 1 2 3 के ज़ुमरे में नहीं आती, क्योंकि इनकी शक्ल ऐसी है, हैयत या फॉर्म ऐसा है कि हम इनको गिनती नहीं करते। तो नाउन जो होते हैं वो या तो प्रॉपर होते हैं या कॉमन होते हैं। जो कॉमन होते हैं वो या काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। जो काउंटेबल होते हैं वो जो है ना उनके सिंगुलर प्लूरल होते हैं। देखिए सिंगुलर प्लूरल उनके बनते हैं जो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते, काउंटेबल नाउन के हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। जिस तरीके से बुक है बुक्स, चेयर है चेयर्स। तो पहली बात वो नाउन हो, दूसरी बात वो कॉमन हो, तीसरी बात वो काउंटेबल हो, चौथी बात वो सिंगुलर हो, सिंगुलर। तब हम आर्टिकल लगाते हैं अ या एन। अ या एन, बुक है, आप लगाएंगे आई नीड अ बुक। अच्छा, इसमें एक बात और ज़हन में रखो जिस पे काफ़ी, जब हम इसका तर्जमा करते हैं ना तो हम कहते हैं कि मुझे एक बुक चाहिए, एक हम डालते हैं। अच्छा, फिर अगर मैं कहूँ कि आई नीड अ बुक तो आप कहेंगे मुझे एक बुक चाहिए। फिर मैं कहूँ कि आई नीड 1 बुक तो भी आप कहेंगे कि मुझे एक बुक चाहिए। तो क्या 1 और अ, ये इन दोनों का मतलब हमें एक निकालना चाहिए? एक क्या है? अगर लैंग्वेज में देखें तो एक एडजेक्टिव है।
1 is adjective, 2, 1, 2, 3, 4 they are adjective, okay, adjective of number. तो अब ये जो अक्सर हम पढ़ाते भी हैं या कहते हैं कि आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। फिर अगर हम ये लिखेंगे आई वांट टू टेल वन स्टोरी, तो भी हम कहेंगे कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। क्या हमें को एक के सेंस में लेना चाहिए? जो कि हम जब हम अपनी ज़बान में बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक हम नहीं बोलते क्योंकि हमारी लैंग्वेज में आर्टिकल है ही नहीं, ये एक का तस्वर ऐसा नहीं है। जब हम एक यूज़ करते हैं तो हम एक को बतौर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो जब आप दुकान वाले के पास पेन लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, जी मुझे पेन लेनी है या मुझे एक पेन लेनी है? आप थोड़ा इसको देखें अपनी लैंग्वेज पे। हम दुकान वाले को सिंपल यही कहते हैं कि मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन चाहिए। हम ये नहीं कहते मुझे एक पेन चाहिए। प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें। तो अक्सर ये जो हम या एन से एक का मतलब निकालते हैं, या आई वांट टू टेल यू ए स्टोरी, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप क्योंकि हमारी ज़बान में आर्टिकल है ही नहीं तो आप इसका मतलब निकालने का ऐसा सेंस कोशिश ना करें। देखिए जब द की बात आती है तो हम इसका अर्थ कहते हैं द की कोई मीनिंग नहीं है। तो जब द की कोई मीनिंग नहीं है तो आ या एन की इस तरह मीनिंग कनेक्ट करना जो कि एडजेक्टिव बन जाए और वन की रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, इसको थोड़ा हमें चेंज करना चाहिए। तो इसको सिंपल आप ये कहें कि आई नीड ए स्टोरी, मुझे कहानी सुनानी जो है ना वो बतानी है। आई नीड अ पेन, मुझे पेन चाहिए। बस दुकान पे आप बिल्कुल यही ओपनली यही कहते कि हाँ भाई क्या चाहिए आपको, जी मुझे पेन लेनी है। तो आप यही कहते, आप तो कब कहते कि मुझे एक पेन लेनी है? तो प्लीज़ जस्ट अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। और हमारी अपनी लैंग्वेज में जो है ये 8 वर्ड क्लासेस पे ख़त्म होती है। अंग्रेज़ी में 9 वर्ड क्लासेस, 8 या 9 हम इसको भी यूज़ करते हैं। तो ये उनका एक एडिशनल कंपोनेंट है। तो उस एडिशनल कंपोनेंट को आप 9वें पार्ट को आप अपने 8 पार्ट में से निकालने की जब कोशिश करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे तमाम क्लासेस 8 पे ख़त्म हो रहे हैं। उनके पास ये एक एडिशनल चीज़ है, तो इस एडिशनल चीज़ को आप बाहर रखो, उस 8 में मिक्सअप न करो। वेल तो आर्टिकल जो है ना नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, और अगर अलिफ की साउंड से शुरू होता है तो आप एन लगा दो, अगर अलिफ की साउंड से शुरू नहीं होता है तो अ लगा दो। आई नीड अ पेन, आई नीड एन एप्पल। अब एन एप्पल क्यों? एप्पल अलिफ की साउंड से शुरू हो रहा है, एन एप्पल। आई नीड अ पेन, पेन। अब पेन भी नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। एप्पल भी नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। तो इन दोनों को मिलाकर जो है ना आप इनके साथ जो है ना वो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जो अ या एन है, ये इंडेफिनेट जो आर्टिकल्स हैं ये चीज़ों को आम लगाते हैं। कोई भी नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, उसको आम करने के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल अ या एन लगाते हैं, और जब उसको ख़ास करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। आई नीड अ पेन, मुझे पेन चाहिए, किसी खास पेन का जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन मैं अगर कहूँ द पेन यू गेव मी यस्टरडे इज़ मिसिंग, द पेन यू गेव मी यस्टरडे, द पेन में यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ? जो पेन आपने मुझे कल दी थी वो गायब हो गई है, इस मिसिंग। तो यहाँ पे द क्यों लगा रहा है? क्योंकि हम एक मखसूस पेन की बात कर रहे हैं। ओके, आज मैं आपके पास आऊँ, आपका मैं कहूँ कि प्लीज़ आई नीड अ पेन, मुझे पेन चाहिए, आप मुझे पेन दे दें, और मैं कहूँ थैंक यू वेरी मच, मैं आपकी पेन लेकर चला जाऊँ, और अगले दिन वो मुझसे गायब हो जाए, फिर मैं क्या कहूँगा? प्लीज़ द पेन यू गेव मी इज़ मिसिंग, द पेन। ओके, या आप मुझे हो तो फ़ोन करते हैं कि सर वेयर आर यू, और मैं कहूँ कि प्लीज़ आई एम इन एन अकेडमी, आई एम इन एन अकेडमी, मैं एक अकेडमी में हूँ, मैं अकेडमी में हूँ। तो अगर आप कहेंगे सर आई यू इन द पैरागन अकेडमी, आई के यस आई एम इन द अकेडमी, द यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ आई एम इन दी अकेडमी, दी। अब जो इस द या दी, इसको हमें देखना होता है कि हम इसको द पढ़ें या दी पढ़ें, डिपेंड करता है कि आगे क्या है। अगर वाइल साउंड है तो हम इसको दी पढ़ते हैं, जिस तरह अभी मैंने कहा कि आई एम इन दी अकेडमी। दी यहाँ पे क्यों लग रहा है कि अकेडमी जो है ना वो अलिफ के साउंड से शुरू हो रही है, वाइल है। और अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम इसको द पढ़ते कि येस आई एम इन द होटल, येस आई हैव द पेन, द बुक, ओके द बुक, द पेन, बट दी एप्पल, दी एप्पल, एप्पल। तो आर्टिकल में इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि वेयर यू आर यूजिंग दिस एन एन को हम नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, और उसको आम तौर पे जब डिस्कस किया जाता है तो हम या एन लगाते हैं। फिर जब हम उसको ख़ास कर देते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं ज़िदा। ओके, सो नाउन ने चीज़ों पे नाम रखा, प्रोनाउन उसके मुतबादिल लाया,
एडजेक्टिव ने आपको बताया नाउन प्रोनाउन है कैसा, वर्ब आपको बता रहा है कि वो काम क्या कर रहा है, एडवर्ब बता रहा है कि वो काम कैसे हो रहा है, प्रीपोजिशन उसके दरमियान लिंक पैदा कर जगह बता रहा है और कंजक्शन लिंक पैदा कर रहा है, इंटरजेक्शन आपकी सडन फीलिंग का इजहार है और आर्टिकल्स उसको या तो ख़ास कर रहा है उस नाउन कॉमन काउंटेबल सिंगुलर को या तो उसको आम कर रहा है। अब इस चीज़ों के पेश नज़र हमने पिछले दिनों वर्ड एनालिसिस किया था, सेंटेंस एनालिसिस, सेंटेंस को एनालाइज किया था कि उसमें हमने नाउन और डिफरेंट पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश की थी और उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपके पास पेन और पेपर मौजूद होगा और अब मैं आपके स्क्रीन पे जो सेंटेंस आएगा उसी को आप जो है ना वो एनालाइज करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस सेंटेंस को एनालाइज किया था कि आई प्ले क्रिकेट फास्ट बट आई प्ले फुटबॉल स्लो। आई एम ए फास्ट बॉलर, इसमें आई प्रोनाउन है, प्ले वर्ब था, क्रिकेट नाउन है, फास्ट एडवर्ब है। फास्ट किसके बारे में बता रहा है? प्ले वर्ब के बारे में। मैं खेलता तो हूँ लेकिन कैसे खेलता हूँ? फास्ट खेलता हूँ, तो फास्ट एडवर्ब है क्योंकि ये प्ले के बारे में बता रहा है। बट आई प्ले फुटबॉल स्लो, बट कंजक्शन है जो एक पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है और उसके दरमियान जो कंट्रास्ट है उस कंट्रास्ट को शो कर रहा है कि एक चीज़ तेज़ खेली जा रही है, एक चीज़ स्लो खेली जा रही है, उसके दरमियान एक कंट्रास्ट है। ये जो कंट्रास्ट है, ये जो मुख्तलिफ पन है, उसके लिए ये बट कंजक्शन लगाकर हमने कंट्रास्ट को जाहिर किया है। बट आई प्ले फुटबॉल स्लो, क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों नाउन हैं, प्ले दोनों में वर्ब है और स्लो एंड फास्ट एडवर्ब है क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये काम कैसे हो रहा है। आई एम अ फास्ट बॉलर, अब यहाँ पे आई प्रोनाउन है, एम जो है ना वो लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब और जो है ना वो अपना हेल्पिंग वर्ब को मैंने पहले भी बताया था। इनकी पिछली मरतबा सिकंदर ने शायद सवाल छोड़ा था कि सर हमें कैसे पता चले कि ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। देखें, एम के बाद अगर वर्ब आ जाएगा तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा और अगर एम के बाद नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए तो फिर ये लिंकिंग वर्ब होता है। अब यहाँ पे क्या है? बाउलर है, फास्ट बाउलर, एम के बाद बाउलर आ रहा है, बाउलर नाउन है, ये लिंकिंग वर्ब है। आई एम टीचिंग, अगर टीचिंग होता है यहाँ पे तो फिर वर्ब आएगा तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्प करेगा। तो ये जब हेल्पिंग वर्ब बनता है ना तो किसी टेंस के लिए हमारी मदद करता है और जब लिंकिंग वर्ब बनता है तो टेंस को जोड़ता है, उसके दरमियान लिंक पैदा करता है। तो दैट्स बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब हम वर्ब पे आएंगे, वर्ब को खोलेंगे तो हम इस लिंकिंग वर्ब को और इसको वर्ब को डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ एंड यू हैव टू just analyze the next part of this sentence. Okay, this is we covered in our last class and here's a noun, I is a pronoun and verb whatever I discussed now. This is next sentence and you have to go with your exercise. Please try to analyze it into find it which is noun, which is verb, which is conjunction, which is prepositions and how they are being mixed up. Please, it's your time. Try to analyze it. सिकंदर दे आर सब्जेक्ट। ओके, देखिए यहाँ पे हम सेंटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज नहीं करना चाह रहे इसको, हम इसको वर्ड क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें कि हमने ये नहीं कहना कि दे सब्जेक्ट है फिर ये प्रेडिकेट है या ये वर्ब है या ऑब्जेक्ट है।
ये सेंटेंस के पार्ट होते हैं, हम इस टाइम सेंटेंस के हवाले से डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको वर्ड क्लास के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि इसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है। यस दैट्स राइट जला, यू आर राइट। ओके, देयर इज ए प्रोनाउन, देयर इज ए प्रोनाउन। ओके, फॉर इज ए प्रीपोजिशन। गुड। ओके, that's nice Askar, that's nice. Good, good, good. Okay, waiting is a verb. Busy is adjective, that's nice also. That's nice. Good. Okay, yes, that's nice. So that's great. That's great. Look at this. Okay, there is a pronoun ara, helping verb, and waiting. Waiting is a verb. Okay, this is action verb. Okay, fa is a preposition. Me, that's a pronoun. But is a conjunction. But is a conjunction जो इसके दरमियान junction पैदा करे. I again pronoun. Am linking verb. देखिए ऊपर वाले एम के बाद जो है ना आ रहा है, वो यहाँ पे देखें कि इस एम के बाद दे आर वेटिंग, यहाँ पे आर के बाद ये वर्ब आ रहा है। मैंने कहा ना इस एम आर के बाद जब वर्ब आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यहाँ पे जो ना ये हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें कि दे आर वेटिंग, वो इंतज़ार करें फॉर मी। बट आई एम वेरी बिजी, इस एम के बाद यहाँ पे क्या खड़ा है, ये बिजी है। बिजी कौन सा है, ये एडजेक्टिव है। अब ये जो वेरी है ना, ये एडवर्ब है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एडवर्ब जो है ना नाउन की भी मदद करता है, लेकिन साथ में सॉरी एडवर्ब वर्ब की भी मदद करता है, फिर एडजेक्टिव की भी करता है, फिर एडवर्ब की भी मदद करता है, प्रीपोजिशन की भी मदद करता है, और इसकी जो है ना वो भी मदद करता है। सो थैंक यू वेरी मच सनम एंड आतिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिस्पॉन्स। गुड। ओके, मीन्स ए प्रोनाउन। गुड महबूब, सो गुड, वेरी गुड महबूब। सो दे आर वेटिंग फॉर मी बट आई एम वेरी बिजी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मगर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो दे प्रोनाउन है, आर वेटिंग है हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग ये एक्शन वर्ब है, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इंग फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, फॉर मी फॉर प्रीपोजिशन है, और मी जो है वो यहाँ पे प्रीपोजिशन प्रोनाउन है। बट अब बट कंजक्शन का काम कर रहा है, जो जंक्शन पैदा कर रहा है। आई एम वेरी बिजी, आई प्रोनाउन है, एम लिंकिंग वर्ब है, वेरी एडवर्ब है। देखिए बिजी एक एडजेक्टिव है, बिजी एडजेक्टिव है। अच्छा किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है। आई क्या है, आई बिजी है। अच्छा बिजी तो है मगर कितना बिजी है, अब इस कितने को मजीद एडजेक्टिव को मजीद क्लियर करने के लिए फिर एडवर्ब जाता है इसकी मदद करने के लिए। तो ये वेरी जो है ना, ये एडवर्ब जा रहा है बिजी एडजेक्टिव की मदद करने के लिए यहाँ पे। यस नूरदीन, दैट्स नाइस नूरदीन, दैट्स नाइस। तो यहाँ पे ये जो है ना वो बिजी जो है ना उसकी मदद करने के लिए जा रहा है, उसकी अपना वेरी की एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे एक ये सेंटेंस एनालाइज हुआ। अब हम एक और छोटा सेंटेंस एनालाइज करेंगे जल्दी जल्दी, and then we will move forward to other activities of semantics. Thank you very much. Okay. Now look at this. For when I completed my food, my sister had left the dining hall. Okay.
अब इसको अगर हम एनालाइज करें तो इसमें व्हेन जो है ये कंजक्शन है। अब देखिए कंजक्शन ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस के दरमियान में आए, ये सेंटेंस की शुरू में भी आ सकता है और फिर सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ उसको रिलेट करता है, कोरिलेट करता है, कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे व्हेन जो है ना वो कंजक्शन है, ये जंक्शन पैदा कर रहा है दूसरे सेंटेंस के साथ। जब मैंने खाना कंप्लीट किया था, व्हेन आई प्रोनाउन है, कंप्लीटेड ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो व्हेन आई कंप्लीटेड, जब मैंने कंप्लीट किया था, माई फूड, माई यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये किसको क्वालिफाई करा, फूड को। फूड क्या है, नाउन है। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। कि नो, व्हेन इज नॉट से एडजेक्टिव, सिकंदर इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट इज दैट कंजक्शन, ओके, जो लिंक पैदा कर रहा है। वैसे अगर उस सेंटेंस को एतबार में अगर आप इसको देखें तो ये एडवर्ब हो सकता है क्योंकि वो उसकी जो है ना वो टाइम को रेफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कोरिलेट कर रहा है उसके दूसरे सेंटेंस के साथ, ओके, यस। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माई फूड, अब देखें ना, अगर ये सेंटेंस को अगर हम व्हेन को यूज़ करें एडवर्ब के तौर पे, तो ये एडवर्ब के तौर पे फंक्शन कर सकता है कि वो जस्ट टाइम को रेफर करेगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हम इसको दूसरे सेंटेंस की तरफ जो है ना वो मुंतकिल करेंगे, व्हेन आई कंप्लीटेड माई फूड माई सिस्टर हैड लेफ्ट, ओके, जब ये चीज़ हुई थी तो वो जा चुकी थी। अब चूंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हम कन्वर्ट करें दूसरे सेंटेंस की तरफ, सो इट इज़ गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ ए कनेक्टिव्स, ओके। अब यहाँ पे ये कनेक्टिव्स के तौर पे काम करे कि व्हेन आई कंप्लीटेड माई फूड, जब मैंने अपना फूड पूरा किया था, माई एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। उसके बाद फूड नाउन है, माई सिस्टर, फिर माई जो है वो एडजेक्टिव है, सिस्टर नाउन है, हेड ये हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट ये एक्शन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द जो है वो अपना आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, द डाइनिंग हॉल। अब डाइनिंग हॉल जो है ये एक नाउन है जो हम नाउन के तौर पे यूज़ करें। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम दो पार्ट्स को मिलाकर एक नाउन बना लेते हैं, तो वो फिर एक डिफरेंट नाउन को जन्म देते हैं। जिस तरीके पोस्ट और ऑफिस को मिलाकर हम पोस्ट ऑफिस बनाते हैं, या क्लास और रूम को मिलाकर हमने नाउन क्लासरूम बनाया हुआ है। इस तरीके से ये डाइनिंग हॉल जो है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ नाउन, सो दिस डाइनिंग हॉल इज अ नाउन। अब इस पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको एनालाइज करें तो दिस विल बी व्हेन इज अ कंजक्शन, कनेक्टिव्स, आई प्रोनाउन, कंप्लीटेड, ओके, verb, my possessive case of adjective, food is noun, again my possessive adjective, sister that's a noun, head helping verb, left that's action verb, the article, and dining hall is a noun. So in this way, yes, dining को अगर आप separate treat करते तो this could be adjective, लेकिन यहाँ पे ये डाइनिंग हॉल बितौर लैंग्वेज में बितौर एक नाउन के तौर पे रेफर किया जा रहा है सिस्टम में, जिस तरीके से क्लासरूम, आर पोस्टमैन, आर पोस्ट ऑफिस। सो वी कैन जस्ट यूज दिस केस, ओके। Yes, it's a possessive case of a pronoun, but this is possessive adjective, Rustam. So this is a possessive case of adjective. We call it possessive adjective, and because whenever it comes, it goes to qualify noun and pronoun. Okay. Here you see that my is going to qualify my sister. Sister is noun. Or in the first sentence, okay, when I completed my food, then again food is noun. So food, my food is noun. My sister and my sister is noun. Here this my is a possessive case of adjective. Okay, so this is a possessive adjective, though it's a pronoun, but this is its possessive adjective. Its case is called possessive adjective. तो ये उस adjective की तरह लैंग्वेज में यहाँ पे ये pronoun बिहेव कर रहा है। अब थोड़ा हम एक एडवांस लेवल का सेंटेंस को डिस्कस करते हैं, इसको एनालाइज करें, देखें कि यहाँ पे आपको क्या नजर आता है।
Okay, thank you very much. Your time is up. Okay, now let's analyze this sentence. It was a sunny, bright and hot day. ये एक मुकम्मल सेंटेंस है. It इसमें प्रोनाउन है. Was जो है वो लिंकिंग वर्ब है. क्यों? क्योंकि देखें was के बाद क्या आ रहा है? सनी, ब्राइट, हॉट डे. ये सब ना जो है ना वो डे जो है ना वो ये नाउन है. तो इनके बाद जब नाउन या एडजेक्टिव आते हैं तो ये जो है ना वो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं. और जब इनके बाद वर्ब आता है तो ये एक्शन वर्ब बनता है. तो यहाँ पे वॉज जो है ये लिंकिंग वर्ब है. इट वॉज अ सनी. अ जो है ना आर्टिकल है. अब आर्टिकल किसको क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे ये जो अ है ये क्वालिफाई कर रहा है डे को. डे जो है ना वो नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है. अब उस डे को मज़ीद जो उस डे चूँकि नाउन है तो नाउन को क्लियर करना जिम्मेदारी एडजेक्टिव की है. तो इस नाउन को डे को क्लियर करने के लिए 3 एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं. सनी डे, ब्राइट डे एंड हॉट डे. ये तीनों एडजेक्टिव्स है, सनी, ब्राइट, हॉट. अब चूंकि 3 एडजेक्टिव यूज हुए हैं तो इन 3 एडजेक्टिव को लिंक करने के लिए एक कंजक्शन एंड दरमियान में आया है. तो इस पहले सेंटेंस को अगर देखें कि इट वॉज अ सनी, ब्राइट एंड हॉट डे. इट इज अ प्रोनाउन, वॉज इज अ लिंकिंग वर्ब, अ इज अ इंडेफिनिट आर्टिकल, sunny is adjective, bright is adjective, and is a conjunction, hot is adjective, day is noun. तो ये तीनों adjective बेसिकली नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, day को. और जो आर्टिकल यूज हुआ है वो भी इसी नाउन के लिए यूज हुआ है क्योंकि नाउन सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है. और फिर एंड जो यहाँ पे कंजक्शन यूज हुआ है ये जो है ना इन 3 एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए यूज हुआ है. सनी, ब्राइट और हॉट इन 3 एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए यूज हुआ है. अब दूसरे सेंटेंस को अगर देखें, असलम एंड जाहिद डिसाइडेड टू विजिट अ फार माउंटेनियस विलेज. असलम दैट्स अ प्रॉपर नाउन, जाहिद इज अ प्रॉपर नाउन. अब ये दोनों प्रॉपर नाउन है. इन 2 प्रॉपर नाउन को आपस में जोड़ने के लिए हमने फिर कंजक्शन यूज किया, दैट इज एंड. एंड इज अ कंजक्शन है. ओके, डिसाइडेड टू विजिट अ फार माउंटेनियस विलेज. तो जो अ है ये फिर आर्टिकल है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है, सॉरी, डिसाइडेड को पहले हमारा डिसाइडेड वर्ब है. डिसाइडेड टू विजिट, डिसाइडेड वर्ब है. टू विजिट ये भी एक्शन वर्ब है, इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव के तौर पे ये जो ने यूज हो रहा है. अब वर्ब अपनी रूट से शुरू होता है, फिर वो इन्फिनेटिव बनता है. इन्फिनेटिव से फिर वो पास्ट फॉर्म में आता है, फिर पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल में आता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल से प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल से आगे फिर जेरेंट या नाउन की शक्ल अख्तियार करता है. तो ये वर्ब अपने जो इम्परेटिव फॉर्म से रूट से लेकर वहाँ तक कैसे पहुँचता है, ये वर्ब के एरिया में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, और फिर जेरेंट क्या होते हैं. ये हम जो है ना वर्ब के रीजन में जब पहुँचेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे. लेकिन सिंपली ये यहाँ पे जो है ना वो वर्ब है. सिंस, अच्छा, तो टू विजिट अ जो आर्टिकल है. अब आर्टिकल किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को, कॉमन, काउंटेबल, सिंगुलर. और ये जो विलेज है ना, ये विलेज एक नाउन है. और ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है. तो यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल अ लगा हुआ है, अ विलेज. और जब हम फार की तरफ जाते हैं, फा जो है वो वैसे तो देखें ना यहाँ पे फा माउंटेनियस, माउंटेनियस एडजेक्टिव है. और ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है? उसको कर रहा है अपना विलेज को. तो विलेज तो है लेकिन कैसा विलेज है? जब जो ना पहाड़ी गांव था. तो यहाँ पे माउंटेनियस एडजेक्टिव है. और फिर जो ना उसको मज़ीद जो है ना वो एडजेक्टिव को क्लियर करने के लिए फा जो है ना एज ए एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है. जो फा एडवर्ब माउंटेनियस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और माउंटेनियस एडजेक्टिव विलेज नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. जबकि अ जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है जो विलेज नाउन की बात कर रहा है. सिंस दे वर टू, सिंस. अब देखिए ये सिंस यहाँ पे कंजक्शन है. आप इसको प्रेपोजिशन के तौर पे भी जो यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, जब हम यूँ यूज़ करते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ये सिंपल यहाँ पे प्रेपोजिशन है. लेकिन जब इसको हम कंजक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये इसका इम्पैक्ट दूसरे सेंटेंस की तरफ मुंतकिल होता है. यहाँ पे सिंस का मतलब है जैसा के, जैसा के they were two, since they were two. अब दे क्या है? प्रोनाउन है.
वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब है। टू चूज एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया कि जब इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाए ना तो ये लिंकिंग वर्ब बनते हैं, और अगर इनके बाद एक्शन वर्ब आ जाए, वह जो वर्ब है एक्चुअल, तो फिर ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब बनती है। तो यहाँ पे वह जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। वर्ब के बाद क्या है? टू। टू क्या है? एडजेक्टिव है। सिंस दे वर टू, जैसा कि वो दो थे, दे डिसाइडेड, दे प्रोनाउन डिसाइडेड वर्ब टू राइट जैसा इन्फिनेटिव वर्ब। ऑन इज अ प्रेपोजिशन। अब देखें यहाँ पे हम जो है ना ऑन लगा रहे हैं, लॉजिकल प्रेपोजिशन है। जब गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह, ऊंट वगैरह पे हम सवारी करते हैं तो हम इसके साथ ऑन लगाते हैं। देखें इनको हम कभी भी ड्राइव नहीं करते। बाइक को हम ड्राइव नहीं करते, बाइक पे हम राइड करते हैं। बाइक हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, कैमल हो, जिसी की भी पीठ पे आप सवारी करते हो तो वहाँ पे हमें ऑन लगाना चाहिए, जो है ना वो वहाँ पे ड्राइव नहीं लगाना चाहिए, और यहाँ पे हमें राइड लगाना होता है। सपोज we say that I ride on bike, I ride on camel, I ride on horse, so ride on a bike, okay। ये बाइक जो है ना वो यहाँ पे नाउन है, और फिर आगे इंडेफिनिट आर्टिकल अ खड़ा है। क्यों अ है? क्योंकि बाइक नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। तो दूसरे सेंटेंस के अंदर सिंस कंजक्शन, दे प्रोनाउन, वर लिंकिंग वर्ब, टू एडजेक्टिव, दे प्रोनाउन, डिसाइडेड वर्ब टू राइट, ओके, दैट्स इन्फिनिटिव, एंड अगेन ऑन preposition a, that's article, bike, that's a noun। alas, ये कंजंक्शन इंटरजेक्शन है और दुख की अलामत है। दे, यहाँ पे जो दे है ये प्रोनाउन है। अब देखें alas के बाद एक्सक्लेमेशन साइन है, तो मैंने दे का टी कैपिटल किया हुआ है, जो मैंने आपको पहले रूल बताया था। दे मेट अ डेडली एक्सीडेंट। मेट यहाँ पे वर्ब है, अ आर्टिकल है, और ये आर्टिकल किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पे नाउन कौन सा है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है? क्योंकि नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने अ लगाया है। अब यहाँ पे हमने एन एक्सीडेंट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसके दरमियान कंजक्शन, इसके दरमियान एडजेक्टिव डेडली मौजूद है। अगर आप डेडली को हटा दें तो हम कहेंगे दे मेट एन एक्सीडेंट, लेकिन अब डेडली मौजूद है तो डेडली देखे अलिफ के साउंड से शुरू नहीं हो रहा है, तो हम फिर यहाँ पे एन एक्सीडेंट नहीं लगा सकते। दे मेट अ डेडली एक्सीडेंट, वो एक बहुत ज़्यादा उन खतरनाक एक्सीडेंट से उसका वास्ता पड़ा, तो यहाँ पे डेडली एडजेक्टिव है, जो एक्सीडेंट जो है ना वो नाउन है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। सो इन दिस सेंस वी जस्ट फोकस ऑन दीज पार्ट्स up to in this area, okay, you saw that how we are going to connect these language syntax, okay, and analysis of a sentence is very important. We need to analyze that in a sentence which parts are available and how they are functioning. That is very important. If you can analyze a single sentence, you can find that this is a noun, this is a pronoun, this is a verb, this is adjective, this is linking verb, this is helping verb, this is adverb, this is conjunction, this is interjection, this is article, and how they are functioning in that system of that sentence or language. That's very important. So by this way we would keep practicing these areas of syntax to improve our grammatical composition skills, but at the same time, as I already mentioned, that we would also go to the interpretations of other essentials, that's semantics as well as phonetics, okay. So syntax is over here. Let us switch to the area of semantics, and in semantics we would repeat that videos what we listened in our previous session, and each video or each clip, okay, we would cover from semantics point of view, okay, then also we would cover it from semantics from phonetics point of view. So that would be appropriate to deal a piece from semantics point of view to improve your vocabulary. Then again we would read the same from phonetics point of view to improve our pronunciation. That's very proper way. So in this clip, okay, we have already covered this clip. ये clip हमने कल जो है सेमेंटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया था कि उसकी मीनिंग और वर्ड्स के एतबार से, लेकिन अभी उसी को हम दोबारा सेंटिक्स जो है ना फोनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे, सुनेंगे कि उसमें वो प्रोनाउंस वर्ड्स को कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से ए, औ, फी, खे, ठी, छे, आ,
ये जो जिस तरीके से हम साउंड को प्रॉपर प्रोनाउंस करते हैं, सो दैट वी कुड प्रोनाउंस वर्ड्स प्रॉपरली. So let us go with this session of phonetics and to understand that how these words are being produced so that we could produce them accordingly. Thank you. I don't want to eat them ever again. What do you think? So what will you eat instead? I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. Why do you think Why do you think you don't want to do that? Because they're animals and I like animals. So what will we do if we miss eating chicken and meat? I don't miss eating chicken and meat. How about fish? Fish? Yeah. Fish? Is it an animal? Yeah. I won't eat that either. Oh my God! So I what? won't eat animals. Okay. So what do you want to eat? What kind of food do you want to eat? Anything's on the table, but not animals. Why do you feel sorry for animals? Because they're nice, and I know that we cook them sometimes, which is not very nice, and I know we like to eat animals that we cook, but that's not nice for them. Yeah. Do you think they suffer? I think that they don't really like being cooked in the oven. Now look, how does this baby produces these sounds? Okay, focus on. I don't want to eat them ever again. What do you think? So what will you eat instead? You see, as I said that I L P K T, okay, and then other some sounds what I said that this is the same. Especially जब हम थे का sound produce करते हैं अंग्रेजी में, this is say, think, not think, या think, not think, THING जिसको हम think कहते हैं, थे को हम strong कहते हैं, ये हल्का सा say होता है think. और आप देखें यहाँ पे ये कैसे प्रोड्यूस करें, एक बात. दूसरी बात है जब ये बोलते हैं, देखें ना, व्हाट वी कुक, देखिए इस तरीके से जब ये जो इंटोनेशंस को जब आप यूज़ करते हैं, देन योर लैंग्वेज बिकम्स रियली ब्यूटीफुल. ओके, अब ये देखिए बच्ची किस तरह बात करती है. आई थिंक द एनिमल्स व्हाट वी कुक. देखिए दिस इज द वे यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज. ओके, and you can improve your sound, this pronunciation as well. I will eat whatever there's on the table, but not chicken or... Now listen to her, not chicken, che. ये che नहीं कहती, chicken नहीं कहती, che, chicken, no, not chicken. Chicken or meat. अब देखिए यही चीज़ें थी जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी कि you just need to focus in your sound system. Yes, यहाँ पे ना यही चीज़ें थी जो मैंने आपको उसको बताई थी कि that you should need to improve. I, they, say, nay, oh, go, no, so, pee, pick, pen, put, k, kill, come, can, k कहें, के न कहें, इसको पे न कहें, फे कहें, इसको टे न कहें, टे, time, took, ten, इसको छे कहें. और अभी वो क्या करें, chicken, everything that's on the table but not chicken, chicken. Okay, so this way we can improve pronunciation. Why do you think you don't want to do that? Because they're animals and I like animals. So what will we do if we miss eating chicken and meat? I don't miss eating chicken and meat. How about fish? Fish? Yeah. Fish? Is it an animal? अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो हम जब लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं तो हम एक उसमें मखसूस एक इज़हार पैदा करते हैं. देखिए
जब हम सवाल करते हैं तो हम सवाल को भी इस तरह बोलते हैं जिस तरीके से हम एक नॉर्मल सेंटेंस को कहते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ नॉट सिक। तो अब तीनों के अंदर हमारा जो हमारी साउंड की जो है अपना वेरिएशन है वो एक जैसी है, जिससे पता नहीं चल रहा है कि वो सवाल के लिए जो एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होता है कि आर यू कमिंग। देखिए ये ना कहें कि आर यू कमिंग, ऐसा नहीं होता है। इज ही ओके, इज ही ओके, ये इसमें एक सवाल है, एक सवाल की वो एटीट्यूड है लैंग्वेज के अंदर। तो जब हम सवाल अक्सर पढ़ते हैं या बोलते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। अब देखिए ये बच्ची जब माँ उसको कहती है क्या मछली खाएंगे, तो वो माँ से पूछती क्या मछली जानवर है। अब देखिए इसमें इसका एटीट्यूड देखें इसके साथ जो है। Is it an animal? Yeah. Fish? Yeah. Fish? Is it an animal? Yeah. I won't eat that either. I won't eat that either, okay. तो फिर मैं वो भी नहीं खाऊंगी। अगर वो मछली I won't eat that either, फिर मैं वो भी नहीं खाऊंगी। अब देखिए वो कहती है फिर मैं अगर मछली भी जो है ना वो जानवर है, I won't eat that either। यहाँ पे either का मतलब ये कि वो भी, तो फिर मैं वो भी नहीं खाऊंगी क्योंकि वो भी जानवर में आती है। तो ये जो चीज़ है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। That either. Oh my God. So I won't eat animals. अब देखिए एनिमल पे जो इसका ज़्यादा जोर है, जो उस पर एम्फेसाइज कर रही है, उससे उसकी मीनिंग सेंटेंस की चेंज होती है। लैंग्वेजेस की मीनिंग सिर्फ वर्ड्स में नहीं चलती, उसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और आपका जो वर्ड्स पे जो फोकस है, जो उस पर आप जितना जिस पे जोर दे रहे हैं उससे मीनिंग चेंज हो जाती है। अगर आप ये कहें कि आई हेट यू, इस पे पूरा जोर आई पे है, इसका मतलब है मैं नफरत करता हूँ आपसे, कोई और नहीं, मैं करता हूँ। आई हेट यू, तो अगर आप हेट पे जोर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मैं नफरत करता हूँ आपसे। और अगर आप कहें कि आई हेट यू, तो अगर यू पे ज़्यादा आपका वो स्ट्रेस होगा तो फिर वो होगा कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। अब देखिए इसमें आप मैं, आपसे, नफरत, इन तीनों पे जब आप जोर देंगे मुख्तलिफ टाइम पे तो आपका मतलब मीनिंग चेंज होती जाएगी। लैंग्वेजेस में इस तरीके से चेंजेस होती हैं, सिर्फ मीनिंग जो है उस वर्ड तक महदूद नहीं होती। तो हमें ये समझना होता है कि लैंग्वेज के अंदर ये किस तरीके से जो है ना आपकी मीनिंग पे असरअंदाज होते हैं। अब इस बच्ची का एनिमल पे इतना जोर देना इस सेंटेंस की मीनिंग पे असरअंदाज हो रहा है। Eat animal. okay. I won't eat that either. Oh my God. So I won't eat animal. अब देखिए इसने एनिमल पे इतना जोर क्यों दिया है, इससे इसकी मतलब जो है ना वो चेंज हो रहा है कि मैं एनिमल नहीं खा। इस तरीके मकसद लैंग्वेज को लैंग्वेज करके सीखें। वो आई राइट ए लेटर, आई डोंट राइट ए लेटर, इस तरह के चक्रों में लैंग्वेज में मत जो है ना उलझें। रियल लैंग्वेज का जो एक्सपोजर है उसको समझें, उस तरह वो किस तरह फंक्शन करती है। प्लीज़ ट्राई टू, जितना भी उसमें आप लैंग्वेज पे टाइम लगाएं लेकिन वो हो जिस पे आपको रियल सेंस में कोई फ़ायदा पहुँचे। okay. So what do you want to eat? What kind of food do you want to eat? Anything's on the table, but not animals. Terrible. Why do you feel sorry for animals? Because they're nice, and I know that we cook them sometimes, which is not very nice, and I know we like to eat animals that we cook, but that's not we cook. अब देखिए we like animals that we cook. Moles that we cook, moles that we cook, moles that we cook, but that's not nice for them. Yeah. Do you think they suffer? I think, अब देखिए I think, इसको गौर से सुने, I think नहीं। Suffer? I think, They suffer? I think that Do you they, think they suffer? I think that they don't really like being cooked in the oven. I think they don't like to be. So this clip we covered from phonetics point of view. We have already covered this from semantics point of view. जो भी क्लिप हम कवर करेंगे उसको एक हम semantics point of view से देखेंगे कि उसमें वर्ड्स किस तरह यूज़ हो रहे हैं उनको। फिर उसी क्लिप को हम फोनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। फिर उसी क्लिप को हम जो है ना अगर सेंटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें तो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा कि फिर हम उसमें देखें इसमें नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा, एडजेक्टिव क्या, किस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक ही क्लिप को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसी पे काम करें, उसी पे फोनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें, फिर उसी पे सिमेंटिक्स उसके मीनिंग के एतबार से काम करें, देन उसके
जो है अपना सेंटेक्स जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसी के एतबार से उस पर काम करें और फिर देखें कि ये किस तरीके से ओवरऑल उस लैंग्वेज में फंक्शन करें. दैट विल बी हाईली इफेक्टिव. सो दिस वाज a session for your listening and your phonetics. Okay, now we are switching towards the phase of reading. What is a life? Okay, in this reading sessions we cover that is a man who is in a barren desert or a dense forest. All of a sudden this man finds a wild tiger, and the tiger chases the man, and the man runs to save his life. The man is panting and is running with the god speed, and there comes all of a sudden he stumbles and he falls into a well. But before reaching the bottom of the well, there is a tree beside the well, and one of the branches of that tree is hanging in the well. The man catches hold of that branch and is hanging in between. There is a huge and a big giant crocodile with open jaws that's waiting downwards and ready to devour, to swallow, to gulp down this man. And the tiger, the wild tiger, is waiting upward and the whale with watering mouths, ready to gulp down, ready to eat the person. And the man is hanging in between, neither at the bottom of the whale, not on the top of the whale. In the bottom there is a crocodile, on the top there is a tiger, and man is in between. But there is a honeycomb in the same branch he is hanging about, and that branch gets that honeycomb gets broken, and the drops of honey are falling down, and the man is sucking those drops and being quite ignorant of the crocodile and the tiger. So this is the life. So in this story, I think that we would cover. There was one skill, what I said, listen and answer. Now I would ask you some question and you would answer my question. Okay, आप यहीं पे जवाब दे रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे, अपने मुंह से जवाब दे रहे होंगे. आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम थोड़ा फास्ट आएंगे. आप सिर्फ अपने मुंह से जवाब देते जाए. So the girl was going to a dense forest, or the man was going to a dense forest. Oh yes, it was not a girl, but there was a man. And man saw a wolf. No, man saw a tiger. And tiger didn't chase the man. No, tiger chased the man. And the man kept stopping. No, man didn't keep stopping. Man started running. When man was running, man was quite comfortable when he was running. No, he was not quite comfortable, but the man was panting. Man was panting. Man was running with a very slow speed. No, man was not running with a slow speed. Man was running with a god speed. Then all of a sudden, man found a whale. Yes, but it was after stumbling, man saw a whale. And man jumped into the sea. No, man didn't jump into the sea. Man fell into a whale. Man didn't jump into the sea, but man fell into a whale. There was a big snake in the bottom of the whale. No, there was not a big snake in the bottom of a whale. There was a crocodile. Crocodile. There was not a snake. There was a crocodile. And tiger left the top of the whale. No, tiger didn't left the top of the whale. Tiger was looking at the man with watering mouth. Watering mouth. So look, this is a listen and answer session, and by using this technique you can improve your language skill, and we can also use in a classroom to improve our students' respond
ये जो तरीक़ेकार होता है इसमें आपको तर्जमा करने का मौका नहीं मिलता, तो आप डायरेक्ट उस लैंग्वेज में सोच रहे होते हैं जो आपको सीखनी होती है, तो उससे हमें जो है ना वो डायरेक्ट फ़ायदा होता है. नाउ दिस इज़ द सेकंड क्लिप वी कवर्ड इन. ओके, now we don't have much time. I will repeat it next time. Okay, today we are going to cover this new clip. Okay, deserted are barren valley and owls. Okay, please read it. It's your time to read it. Okay. Thank you very much. Your reading time is over. Now let's go for its explanations. Okay. Deserted, barren valley and owls. Okay. Deserted का मतलब होता है कि वीरान या उजड़ा हुआ. यहाँ पे उजड़ी हुई वादी, barren उजड़ी हुई वादी and owls और उल्लू. Once upon a time, एक ज़माने की बात है, there lived a parrot and a she parrot. एक ज़माने की बात है कि एक तोता और उसके साथ एक तोती रहती थी. One day, in the search of food, they flew very far. एक दिन खाने की तलाश में, search of food, खाने की तलाश में, they flew very far. वो बहुत दूर दराज तक उड़ गए. However, after finding food, जैसा भी था, लेकिन खाना तलाश करने के बाद, they decided to fly back. उन्होंने वापस उड़ने का फैसला किया. But as they were too late to reach their next destination, मगर जैसा कि उनको बहुत देर हो चुकी थी अपने घोंसले तक पहुंचने में, their nest घोंसला, destination मंजिल, जो अपनी मंजिल जो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पहुंचने में उनको देर हो चुकी थी. So उनको देर इसलिए
अब देखिए सो यहाँ पे कंजक्शन है। दे डिसाइडेड टू स्टे एट अ ट्री, स्टे के साथ एट देखिए यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन लग रहा है। सो दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू स्टे एट अ ट्री इन अ बैरन वैली, उन्होंने ये फैसला किया कि एक उजड़ी हुई वादी है, ये वहाँ पे ठहरेंगे। फिल्ड विद आउल्स, ये वो वादी जो है वो उल्लू से भरी हुई है। उल्लू जो एक परिंदा है, उसमें बहुत से उल्लू उस वादी में बैठे हैं और ये उन्होंने फैसला किया कि ये वहाँ ठहरेंगे। द शी पैरट सेड, देखिए मैंने आज आपको बताया था जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है वहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें ये उसका डायलॉग है, तो डायलॉग को इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया, तो यहाँ पे द का देखें टी कैपिटल किया गया है। शी पैरट सेड, जो तोती थी उसने कहा, द वैली इज बैरन, बोला ये वादी जो है ना बड़ी वादी पूरी उजड़ी हुई है, बैरन उजड़ी हुई है, डिजर्टेड। द ही पैरट रिप्लाइड, जो तोता था उसने जवाब दिया, वेयर, यहाँ पे देखें डब्ल्यू फिर कैपिटल है, वेयर आउल्स लिव द वैलीज बिकम बैरन, उस तोते ने कहा जहाँ पे उल्लू रहते हों वो वादियाँ जो है वीरान हो जाती हैं, बिकम बैरन, बैरन इज एडजेक्टिव। देयर वाज एन आउल सिटिंग ऑन द सेम ट्री, उसी दरख्त के ऊपर एक उल्लू बैठा था। द आउल आस्क्ड, अब देखिए मैं यहाँ पे दी कह रहा हूँ आउल के लिए, आउल वाइल है। द आउल आस्क्ड वेयर अबाउट्स ऑफ द पैरट्स एंड, उस उल्लू ने इनसे पूछा कि भाई अपनी वेयर अबाउट्स बताओ, कौन हो, कहाँ से आए हो, वेयर अबाउट्स कौन हो, कहाँ से आए हो बताओ। एंड दे रिस्पॉन्डेड देम अकॉर्डिंगली, और इन्होंने उसको जवाब दिया, रिस्पॉन्ड दिया, उस उल्लू को बताया कि जी हम खाने की तलाश में निकले थे, देर हो गई, रात को यहाँ ठहरेंगे, सुबह चले जाएंगे। और ठीक एट द डे ब्रेक, जब सुबह हुआ, एट द डे ब्रेक जब सुबह हुआ, सुबह का टाइम हुआ, व्हेन पैरट एंड शी पैरट्स स्टार्टेड टू लीव, जब तोता और तोती रवाना होने लगे, द ट्री, द आउल ऑन द ट्री अनाउंस्ड, वो जो टी पे बैठा हुआ उल्लू था उसने ये बताया, उसने ये ऐलान किया दैट शी पैरट वॉज हिज वाइफ, देयरफॉर इट कुड नॉट टेक हर, तो तोते को बोला कि ये जो तोती है, ये उल्लू ने कहा कि उसकी बीवी है, इसके लिए तोते को कहा कि आप इस तोती को नहीं ले जा सकते। द पैरट वॉज बोथ शॉक्ड एंड टेरिफाइड, अब जो तोता था वो शौक में आ गया और बड़ा घबराया हुआ था कि यार ये क्या माजरा है। It argued about the color and the size and the beak and wings pattern. तोते ने बहस की, देखो तुम अपना कलर देखो, फिर तोती का कलर देखो, अपना साइज देखो, अपनी चूंच बीक देखो, एंड अपना विंग्स का पैटर्न देखो, फिर इस तोती को देखो। But the owl didn't agree. मगर उल्लू राजी नहीं हुआ, उसने कहा नहीं बाबा नहीं, ये मेरी बीवी है। In the meanwhile, in the meantime, इसी दौरान, दरीन असना, अब देखिए यहाँ पे कंजक्शन यूज हो रहा है, इसी दौरान, इन द मीन वाइल, इन द मीन टाइम, इसी दौरान या दरीन असना, देयर इमर्ज और अपीयर्ड अ मैन फ्रॉम द सेम वैली, इसी दौरान उसी वादी में से एक बंदा अपीयर हुआ, जाहिर हुआ, अपीयर्ड, इमर्ज, अपीयर्ड, एक बंदा जाहिर हुआ, अ मैन फ्रॉम द सेम वैली, उसी उजड़ी हुई वादी से एक बंदा आया। The owl proposed that the matter should be forwarded to the man. वो जो आउल था उसने एक प्रपोजल दिया, एक जो है ना वो दिया कि जी ऐसा करते हैं, the matter should be forward, backward, forward, इसको फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड इस तरह ना प्रोनाउंस किया करें, forward, backward. So he said, he proposed that the matter should be forwarded to the man. So the owl ने उसने ये मशवरा दिया, एक प्रपोजल दिया कि अब मसला जो है, हम ये जो मामला है हम इस इंसान को फॉरवर्ड करते हैं और ये हमारा अमीन होगा। फॉर सोल्यूशन और मीडिएशन, हमारे दरमियान जो मसला हो जाए, मीडिएशन हो जाए, सुलह हो जाए, तो ये मामला इस बंदे को फॉरवर्ड करते हैं कि वो फैसला करें। To which the parrot agreed, conceded. इसी पे तोता भी राजी हुआ, उसने कहा भाई ठीक है, बिल्कुल सही, इंसान है, बाशऊर है, तो ये फैसला करेगा। Agreed और conceded, concede होता है किसी चीज़ पे राजी होना, agreed and concede. When the man approached the parrot, जब वो बंदा पहुँचा, the parrot narrated or stated the whole story to him.
तो तोते ने उसको पूरा किस्सा नरेट किया, बताया, स्टेट किया, नरेट किया, पूरा किस्सा बताया कि ये मामला था, रात को ठहरे, अब जा रहे हैं, अब ये उल्लू कहता है कि ये तोती उसकी बीवी है, अब आप फैसला करें। आफ्टर लिसनिंग टू हिम, लिसन टू, देखिए मैंने कहा ना लिसन के साथ एज ए फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, यहाँ पे देखिए लिसन के साथ लगा हुआ, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। आफ्टर लिसनिंग टू हिम, इसको सुनने के बाद, द मैन अनाउंस दैट इट वॉज ऑब्वियस इन क्रिस्टल क्लियर दैट शी पैरेट वॉज वाइफ ऑफ आउल बियॉन्ड एनी डाउट। इनको सुनने के बाद उसी इंसान ने क्या कहा, द मैन अनाउंस दैट इट वॉज ऑब्वियस इन क्रिस्टल क्लियर, ये तो बिल्कुल जाहिर पड़ा हुआ, ये रोजे रोशन की तरह आया है, दैट शी पैरेट वॉज वाइफ ऑफ आउल, कि ये जो तोती जो है ये उस उल्लू की बीवी लग रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है, बियॉन्ड एनी डाउट। नाउ द पैरेट वॉज स्टन्ड, अब जो तोता था ना वो सकते में आ गया, स्टन्ड, अब वो सकते में आ गया, एंड स्पीचलेस, अब वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था, क्या कहूँ अब इस मामले पे, क्या मैं बोलूँ, वो मकसद बिल्कुल जो है ना वो एक सकते में था और उसको लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे कि वो कुछ बोलता। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब है मायूस हो जाना, हार्ट ब्रोकन, उस वो दिल बर्दाश्त था, एंड हैड नो चॉइस, अब तो उसके पास कोई चॉइस भी नहीं रही थी, except leaving the spot as the solicitor or mediator he chose had announced his final decree and judgment। क्योंकि अब जाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि द सोलिसिटर्स क्या होते हैं, जो आप फैसला करने के लिए अमीन चुनते हैं, वी कॉल देम सोलिसिटर्स और मीडिएटर। तो मीडिएशन के लिए जो इन्होंने सोलिसिटर्स चुना था, जो वकील चुना था, जो अमीन चुना था, he chose, जो इसने चुना था, had announced his final decree and judgment, इसके अमीन ने उसका अपना फैसला दे दिया था। अब तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा। अब तोता सर नीचे करके जब वहाँ से निकलने लगा, when parrot was leaving, जब तोता वहाँ से निकलने लगा, the owl asked to take the she parrot, तो उस उल्लू ने कहा, the owl asked to take the she parrot but remember, तो जब ये तोता वहाँ से सर नीचे करके वहाँ से निकलने लगा तो उस उल्लू ने इसे कहा कि मियाँ ये अपनी तोती लेते जाओ, बट रिमेंबर, मगर याद रखो, वैलीज डोंट बिकम बैरन बिकॉज ऑफ आउल्स, मगर याद रखो वादियाँ इसलिए वीरान नहीं होती कि वहाँ पे उल्लू रहते हैं, बट दे बिकम डिजर्टेड एज देयर इज़ नो जस्टिस, वादियाँ इसलिए वीरान हो जाती हैं कि वहाँ पे इंसाफ नहीं होता। Now look at, this was a story that's very famous story in Malaysia। मलेशिया के अंदर ये कहानी हर आने वाली नस्ल के लिए लाजमी होता है कि ये कहानी वो अपने आने वाली नस्ल को बताएं। तो इसका मतन ये था कि वादियाँ जो हम समझते हैं कि जहाँ पे उल्लू रहते हैं वो वादियाँ उजड़ जाती हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसने कहा था कि वादियाँ तब उजड़ती हैं जब वहाँ पे इंसाफ नहीं होता। और यकीन मानो हम अपनी पसगदाई में भी देखें कि ठीक है हम एक बहुत बड़ी नागहानी आफत या मुसीबत का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाएं तो हम देखें कि हम अपनी लाइफ के अंदर कितने जो है ना वो इस तरह के नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, जिसकी वजह से हमारे इदारे, हमारे सिस्टम, हमारा समाज जो है ना वो एक बेतहाशा जो है ना वो मुसीबतों से घिरा हुआ है। और तो यकीन माने कि जब तक हमारे पास इंसाफ नहीं होगा तब तक जो है ना हमारी वो दुनिया, हमारी वो वादियाँ, हमारी वो चीज़ें जो है ना वो आबाद नहीं होंगी। सो इट वॉज़ वेरी नाइस टू टॉक टू यू ऑल to this session, and by this I am going to announce the end of this my today's session. This was the 9th session, and hope so we would continue this in our next session, and see you day after tomorrow by 4 p.m. Till that, take good care of yours. Thank you very much. May God bless you all. Stay blessed and maintain social distancing. And take good care of yours. Don't take this COVID-19 as a light. Please, 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 please. It's a really big pandemic. This is a big challenge. So kindly convince your parents, convince your family members, and you also take good care of yourself and your surrounding. Those people who are innocent people, are simple people, they don't understand what the scope and I say that the intensity of this pandemic. Therefore, it is your responsibility
to guide them, to support them. If anybody in your surrounding, in your neighbor who needs your real help, do keep them helping, and the young people. So this is a good month, and also keep remember in prayers. May Allah bless you all. Thank you very much. Bye bye.